Hi everyone, this side Ayushi Singh. Today I will be discussing on the new topic that is modes of entry into international business. किस तरीके से entry ली जा सकती है international business में? What are the ways to enter into international business? So we'll be talking about all the points जिस तरीके से we are helpful to enter into international business. The first point is exporting and importing. Exporting and importing is what? मैंने आपको previous video में बताया है that when goods and services are sold to the different country are sold in different country then that is termed as exporting means what आप इंडिया के products को इंडिया के goods को you are selling into the different countries or the other nation then that is termed as exporting and if you are purchasing goods and services of that particular nation and bringing these goods and services inside India then that is termed as importing but आप कैसे entry ले सकते हो international business में through exporting through importing this is the main point see exporting includes two types of exporting that is direct exporting और indirect exporting अब क्या है आप direct exporting में क्या करते हो that you are directly visiting to the foreign country checking the environment checking the business strategies the guidelines rules and regulations procedure to establish a business in that particular country तो आप directly जा रहे हो चीजों को देख रहे हो observe कर रहे हो that what strategy should I bring in this country so that I can establish a business तो वहां की guidelines पढ़ रहे हो वहां के procedures वहां के rules और regulations वहां के market research कर रहे हो वहां का environment check कर रहे हो and then you are establishing business there but indirect exporting is what you are doing all these things through a middleman or the intermediary आप किसी middleman को hire करते हो जो आपके लिए ये सारे वर्क करके देता है और आपको बिजनेस एस्टैब्लिश करके देता है इन दैट पर्टिकुलर प्लेस एनी हाउ आपको इस्टेब्लिश करना होता है बिजनेस बट जो ये हेल्प है कि गाइडलाइंस क्या है एनवायरनमेंट क्या है मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट रिसर्च करके टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स और क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज की जा सकती है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री वो आपको मिडिल मैन करके देता है दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग सो if I talk about direct exporting तो it is a little risky as comparison to indirect exporting क्योंकि क्या है these middlemen these intermediaries are very what we can say is that they are very experienced they are trained in these kind of the jobs as well as these kind of the works जो ये कर रहे हैं तो जब middleman आपकी help कर रहा है जब middleman और the intermediaries are helping you in order to look after all the situations तो वो middleman उस चीज में expert है उस चीज में specialized है तो risk कम होगा उनके थ्रू वर्क को करने में बट डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करोगे तो आपको खुद सब कुछ चेक करना होगा आपको इतना एक्सपीरियंस है नहीं आपको इतनी नॉलेज है नहीं अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री तो रिस्क ज्यादा होगा if I talk about importing में भी डायरेक्ट इंपोर्टिंग होती है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है और डायरेक्ट इंपोर्टिंग जो है वो रिस्की होती है और डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट इंपोर्टिंग इज लेस रिस्की ओके if I talk about the example of exporting as I told you in my previous video also कि एप्पल जो है एक्सपोर्ट करता है आईफोन्स आईपैड्स तो आईफोन और आईपैड्स को एक्सपोर्ट किया एप्पल ने फ्रॉम चाइना से to different countries to variety of the countries तो means what apple export means एप्पल ने जो प्रोडक्ट्स जो चाइना में प्रोडक्ट बने एप्पल के आईफोन्स बने आईपैड्स बने दे आर नाउ सोल्ड इन वैरायटी ऑफ द कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज इफ आई टॉक अबाउट Toyota.
टोयोटा क्या करता है, इंपोर्ट करता है, मींस परचेज कर रहा है पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को फ्रॉम जापान और दी अदर कंट्रीज, और उन पार्ट्स को अपने व्हाट वी से किसी भी लाइक दे आर असेंबलिंग द व्हीकल्स इन यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, तो वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में उन पार्ट्स को, उन कंपोनेंट्स को लेकर आ रहा है टोयोटा कंपनी। तो वो परचेस करके पार्ट्स और कंपोनेंट को लेके आई, मींस व्हाट, इंपोर्ट किया उन्होंने पार्ट्स और कंपोनेंट को, एंड देन they made vehicles, or we can say car, trucks, any of the vehicles we are talking about here. Okay, so if we talk about exporting, importing, so in this way exporting or importing जो है is helpful in order to enter into the international business. Now another one, first we'll be reading about this. The two most popular and the straightforward type of the international commerce are importing and exporting. Selling products or services made in one nation to clients in another is known as exporting. Purchasing products or services from other nation and bringing them into one's own is known as importing. Businesses can access raw material, broaden their market, cut expenses, and diversify their sources of income by exporting or importing. So exporting or importing is helpful in this way कि आप मार्केट एक्सपेंशन कर पाते हो, आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाते हो, रॉ मटेरियल का एक्सेस अच्छा मिल जाता है आपको, बिकॉज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यू आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो आप जिस कंट्री में रिसोर्स सर्च कर रहे हो और आपको उस कंट्री, लेट अस टेक द एग्जांपल कि हमारे इंडिया में दैट रिसोर्स इज नॉट दैट गुड इनफ, तो जब हमारी कंट्री में वो रिसोर्स इज नॉट दैट गुड इनफ, सो विल बी परचेसिंग रिसोर्स फ्रॉम द अदर कंट्री। तो आपको जब डिफरेंट डिफरेंट जगह आप बिजनेस करोगे तो आपको पता चलेगा किस कंट्री का रिसोर्स ज्यादा अच्छा है, सो यू गेट द एक्सेस ऑफ द रॉ रिसोर्सेज। ओके, now if we talk about the example, Apple exports its iPhone and iPads from China to various countries around the world. Toyota import parts and component from Japan and other countries to assemble its vehicle in USA, Canada and Mexico. Okay, now the another mode of entry into international business is licensing and franchising. See, if I talk about licensing क्या है? एक कंपनी परमिशन दे रही है दूसरी कंपनी को टू यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की आप मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज कर सकते हो। व्हाट आर दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर? सी, दीज राइट्स आर manufacturing process, brand name, copyright, technology, trade secrets, trademark or patent. So all these rights of manufacturing process, की क्या manufacturing process है, उसका brand name, copyright, उसकी technology, trademark, patent, ये सारे rights are given to that particular country by that particular company by this company. तो ये कंपनी लाइसेंस दे रही है to use intellectual property right to this company. तो ये कंपनी क्या हुई? ये कंपनी हुई लाइसेंसर, और जिसको दे रही है लाइसेंस, that is the licensee. So if I talk about licensing, we can take the example of Disney. Disney licenses its character and movies to various toys manufacturing, clothing brands and theme parks around the world. See, Disney जो कार्टून कैरेक्टर है वो आपने देखा होगा टी शर्ट्स पे बना हुआ होता है, या कोई भी प्रोडक्ट लाइक बच्चों की वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, इन सब पर बना हुआ होता है। सो डिज्नी ने क्या किया है? डिज्नी ने इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए, इन सभी क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए, इन पार्क में भी डिज्नी डमी बनी हुई होती है, तो इन सभी को लाइसेंस दिया हुआ है दैट दे कैन यूज देयर ब्रांड, बट
they will be charged with a fee or the royalty, or under some guidelines, under some conditions, you will be given this license. Okay, तो क्या होता है, डिज्नी ने लाइसेंस दिया हुआ है इन सभी ब्रांड्स को, इन सभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, इन पार्क्स को, that you can use our brand, you can use our character, the Disney character, but you will be charged with a fee or the royalty, और आपको हमारी कंडीशंस, हमारी गाइडलाइंस माननी पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड लाइसेंसिंग. फ्रेंचाइजिंग इज व्हाट? फ्रेंचाइजिंग जो है, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ लाइसेंसिंग. अब फ्रेंचाइजिंग इज एसोसिएटेड विद सर्विस और लाइसेंसिंग इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स और गुड्स. फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा मॉडल दे दिया जाता है टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. ये कंपनी पूरा का पूरा मॉडल दे रही है to establish in different place इस कंपनी को. तो पूरा का पूरा मॉडल इज मीन्स व्हाट? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मैकडॉनल्ड्स. मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजेस इट्स रेस्टोरेंट टू द लोकल ऑपरेटर्स हु पे फी एंड फॉलो इट्स क्वालिटी एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड. तो क्या है, मैकडी आपने देखा होगा, मैकडॉनल्ड्स है, पिज्जा हट है, केएफसी है, या फिर हम कह सकते हैं स्टारबक्स है, सीसीडी है. ऑल दीज ब्रांड्स लुक लाइक सेम इन एवरी सिटी, एवरी प्लेस. तो क्या है, ये जितनी भी ब्रांड्स हैं, ये अपनी फ्रेंचाइजी दे देती हैं दूसरी कंपनी को, और अंडर सम प्रोटोकॉल, अंडर सम गाइडलाइंस, दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ द लाइसेंस टू दीज कंपनीज. और वो कहती हैं दैट यू विल हैव टू फॉलो आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू विल हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी से बर्गर, जो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर होता है, और आपको उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, आपको उसी तरीके का फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होगा जैसा हम प्रोवाइड करते हैं, और आपको सर्विस स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे. तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, ओवरऑल मॉडल जो है एज इट इज वहीं स्टैब्लिश हो जाता है जहां आप स्टैब्लिश करना चाहते हो. और लाइसेंसिंग में क्या होता है, यू आर गिवन द लाइसेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ व्हाट वी से गुड्स. ओके, now if I talk about franchising and licensing, तो franchising और licensing are helpful in such a way to in this way they are helpful in entering into the international business. क्योंकि क्या है, if that brand is present in USA, अगर वो brand USA में present है, let us take the example of McDonald's. McDonald's कंपनी जो है वो USA में बर्गर प्रोवाइड कर रही है, USA में वो सब चीजें प्रोवाइड कर रही है जो McDonald's प्रोवाइड करती है, फूड प्रोडक्ट्स, any of the food products. तो वो अब इंडियन कंपनी wants to take the franchisee of McDonald's, तो इंडियन कंपनी ने इस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया. ओके, so in this way it is Indian company is helpful to Indian companies getting the entry into the international business. Now, two methods exist for transferring intellectual property rights such as manufacturing process, brand name, copyright, technology, trade secrets, trademark, or the patents from one company to the another, called franchising and licensing. Permission to use or manufacture a good or the services under specific guidelines, including having to pay for the fee or the royalty, is known as licensing. That you have, including having to pay fees or the royalty, then only you are given with these all intellectual property rights. Granting permissions to run a company under a particular brand name while following the particular guideline and protocol is known as franchising. तो franchising तब होती है जब आप पूरा का पूरा मॉडल ट्रांसफर कर रहे हो, you are not transferring, you are giving पूरा का पूरा मॉडल as it is दूसरी कंट्री में या दूसरी प्लेस पर एस्टैब्लिश किया जा रहा है. ये दोनों डेफिनेशन, ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं. नाउ अनदर वन, टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग सेज व्हाट? सी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ इज एक्सप्रेसिंग दैट आप एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे रही है दूसरी कंपनी को टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट और द सर्विस. कैसा प्रोडक्ट? If this company is manufacturing something,
और वो कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क में फोकस करना चाहती है, दैट वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द फूड प्रोडक्ट लाइक पीनट बटर. I am producing peanut butter. तो मैं I am focusing on the taste of the peanut butter, the quality, the ingredients used in that particular peanut butter. तो मैं इन सब चीजों पर फोकस कर रही हूँ. My company is related to making the peanut butter food product rather than making the packaging of that particular peanut butter. तो क्या है, मेरी कंपनी वो पीनट बटर बना रही है, हम मेरी कंपनी उस पीनट बटर को बनाने में फोकस कर रही है. अब क्या है, जब वो पीनट बटर तैयार हो जाएगा बनके, तो हमें उसकी पैकेजिंग चाहिए, हमें बॉटल्स चाहिए, हमें लेबलिंग चाहिए. बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि क्या है, हम उसमें स्पेशलाइज्ड नहीं है, हम उसमें ट्रेंड नहीं है. बट इफ वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, अगर हम कर भी लेते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग को, तो हम जो है बहुत एक्सपेंसिव वे में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उन बॉटल्स को, और वो लेबलिंग्स को भी हम बहुत एक्सपेंसिव बना पा रहे हैं. बट द अदर कंपनी इज एक्सपर्ट इन ऑल दीज थिंग्स. अब वो कंपनी अच्छे से एक्सपर्ट है इन सब चीजों को करने में, देन वी विल बी डेलीगेटिंग दिस वर्क टू दैट पर्टिकुलर कंपनी. क्योंकि क्या है, इससे हम अपने इंपॉर्टेंट वर्क को फोकस कर पाएंगे, और नॉन इंपॉर्टेंट वर्क को हमने डेलीगेट कर दिया है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, और वो हमारे लिए पैकेजिंग कर रही है, हमारे लिए लेबलिंग कर रही है. तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहता है दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, जो हमारा नॉन इंपॉर्टेंट वर्क है, टू दोज कंपनीज जो उस वर्क में एक्सपर्ट हैं. या फिर हम कह सकते हैं बिग बिग कंपनीज जो होती हैं, वो अपना नॉन इंपॉर्टेंट वर्क उन डेवलपिंग कंट्रीज की कंपनीज को दे देती हैं, जो उस वर्क में स्पेशलाइज्ड होती हैं. एक तो डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, तो दीज कंट्रीज आर गेटिंग मोर एंड मोर वर्क थ्रू दीज कंपनीज. तो इन कंपनीज को भी हेल्प हो जाती है कि इनका तो टाइम कम, मतलब इनका टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि when they are focusing on the main work rather than focusing on the non important work, तो इनका टाइम सेव हो गया और ये अच्छे से फोकस कर पाए अपने उस वर्क पर. और डेवलपिंग कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, जो पैकेजिंग लेबलिंग ये सब कर पा रही हैं, और वो स्पेशलाइज्ड है उस वर्क में, और वो अच्छे से कर पाती हैं, तो दे आर स्पेशलाइज्ड ऑल्सो, एंड दीज कंट्रीज आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. तो ये आपको प्रोडक्ट एक चीप प्राइस में बनाकर देती हैं. अब जब वो चीप प्राइस में भी बनाकर दे रही हैं, तो आपको जो है प्रॉफिट हो जाता है. सो इन दिस वे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. नाइक कॉन्ट्रैक्ट विद वेरियस फैक्ट्रीज इन चाइना, वियतनाम एंड अदर कंट्रीज टू प्रोड्यूस इट्स शूज. सी नाइक क्या करता है, अपनी जो वी कैन टॉक, जैसे नाइक का अपर पार्ट हुआ या लोअर पार्ट हुआ, ये लेसेस हुए, तो नाइक इन सब छोटे छोटे वर्क को, नॉन इंपॉर्टेंट वर्क को, इनमें से मे बी लेसेस वाले वर्क को दूसरी फैक्ट्रीज को या दूसरी कंट्री की कंपनीज को दे देता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि तुम ये प्रोडक्ट ये मेरे लिए बनाकर दो, लेसेस मुझे बनाकर दो. दीज फैक्ट्रीज आर लाइक चाइना, वियतनाम और अदर कंट्रीज. और कहता है कि I will be focusing on the important work, और मैं डेलीगेट कर दूंगा अपना वर्क, जो छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे लिए नॉन इंपॉर्टेंट है, मैं वो इन कंपनीज को दे दूंगा बनाने के लिए, क्योंकि ये इन काम में स्पेशलाइज्ड हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे से बना भी पाएंगी और मुझे सस्ता भी दे पाएंगी. सो इफ आई टॉक अबाउट आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या है, हायरिंग अ कंपनी टू प्रोवाइड अ सर्विस दैट इज आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल कंपनीज कोर कॉम्पिटेंस. Outsourcing is related with the services. Contract manufacturing is related with goods और product. तो आउटसोर्सिंग क्या करता है, आउटसोर्सिंग भी सिमिलर ही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, बट इट इज रिलेटेड टू दी सर्विसेज. आउटसोर्सिंग प्रोवाइड, एक कंपनी हायर कर रही है दूसरी कंपनी को, क्यों, क्योंकि दैट कंपनी इज वीक इन सम और द अदर थिंग. मे बी ये कंपनी किसी चीज में वीक है, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी को हायर कर रही है जो उसमें स्ट्रांग है, और वो जो वर्क नहीं कर पा रही है, तो
जो नॉन कोर वर्क है, जो नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो उसको डेलीगेट कर रही है, वो उसको दे रही है कि प्लीज ये आप मेरे लिए इस वर्क को करके दीजिए। और जो मेन वर्क है, जो कोर वर्क है, दैट इज डन बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी ओनली। तो इन दिस वे आउटसोर्सिंग वर्क्स। अब आउटसोर्सिंग का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, IBM आउटसोर्स सम ऑफ इट्स IT functions such as data center management and customer support to companies in India, Philippines and other countries। क्या होता है, IBM जो है is that particular company जो IT related company है। तो क्या है, अब IBM को important work करना है अपना। If IBM is situated in some of the other country, और वो उसको अपने छोटे मोटे वर्क जो होते हैं, जो नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क है, लाइक डेटा सेंटर मैनेजमेंट या कस्टमर सपोर्ट इज व्हाट कॉलिंग वगैरह जो वर्क है, दैट IBM give to Indian people, to the Philippine peoples or the other country people, so that these people can work for IBM। और IBM जो अपना important work करना चाहता है, the IT functions का जितना भी important work है वो खुद करेगा, और ये जो data center management और support, customer support like calling और ये सब चीजें, ये Indian people, Philippines और other country के लोग कर सकते हैं। इस वजह से अब क्या है, IBM भी फोकस कर पाएगा अपने इंपॉर्टेंट वर्क को, और इन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया। दीज पीपल आर गुड इनफ इन ऑल दीज थिंग्स, इन लोगों को इनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वर्क भी मिल गया। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग, delegating part or all of the production or service activities to a different company, usually in a lower cost nation, can be accomplished through contract manufacturing and outsourcing. Hiring a different company to manufacture a product in accordance with the requirement and the quality standard of the original company is known as contract manufacturing. Hiring a company to provide a service that is outside of the original company's core competence is known as outsourcing. If I talk about the example, Nike contract with various factories in China, Vietnam and other countries to produce its shoes. IBM outsourced some of its IT functions such as data center management and the customer support to the companies in India, Philippines and other countries. Okay, so in this way contract manufacturing or outsourcing are helpful to enter into the international business. Now, the fourth one is joint venture and strategic alliance. See, joint venture is what? When one company join or merge with the another company, or we can say two companies combine together to form one entity, one company or one firm is termed as joint venture. क्या है, business, when there are business activities taking place between the two companies or the two parties, that is termed as joint venture। तो आप कुछ भी कह सकते हो in the way that दो कंपनियां मिलकर business activities कर रही हैं, that is joint venture। when one company joins the another company, that is joint venture। तो कोई भी दो कंपनीज मिलकर अगर बिजनेस कर रही हैं तो हम उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। और जॉइंट वेंचर इज हेल्पफुल इन सच अ वे कि सपोज करो ये कंपनी कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रही थी और दूसरी कंपनी कोई दूसरा पर्टिकुलर बिजनेस कर रही थी, बट दीज कंपनीज आर रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं जो दोनों ही कंपनीज आर वेरी मच हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अब क्या करती हैं, दोनों कंपनीज एक दूसरे की हेल्प लेती है। ये कंपनी किसी चीज में अच्छी है, ये कंपनी किसी और चीज में अच्छी है, तो दोनों मर्ज होकर ज्वाइन होकर एक न्यू एंटिटी बनाती है, एक न्यू फर्म बनाती हैं, सो दैट दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस, सो दैट दे कैन हैव, एक दूसरे की हेल्प भी मिल जाएगी इन दोनों को कि आई एम गुड एट टेक्नोलॉजी, आई एम गुड एट रिसोर्सेज। तो जब ये टेक्नोलॉजी में अच्छी है, ये रिसोर्सेज में अच्छी है, तो दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट को, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया। जब वो मार्केट में सेल हुआ तो उसकी डिमांड भी अच्छी हुई। तो दोनों कंपनीज में जब भी एग्रीमेंट्स होते हैं that today we will be joining together and will make one entity or one company, तो दोनों एक गाइडलाइंस फॉलो करती हैं
procedures, rules and regulations are made so that conflict ना हो. In order to avoid that conflict, in order to avoid that fight, उन दोनों companies में rules and regulations maintain कर दिए जाते हैं that अगर कोई risk आता है तो दोनों को इतना परसेंट help करनी होगी. अगर किसी भी तरीके का profit मिलता है तो that will be shared according to this percentage. किसी भी तरीके का loss होता है तो इस तरीके से loss को हम दोनों को ही manage करना होगा. तो इससे ना अवॉइड हो जाता है, दोनों कंफ्लिक्ट नहीं कर पाते हैं और दोनों पीसफुली, दोनों कंपनीज व्हेन मर्ज टुगेदर एंड मेक वन एंटिटी, तो दोनों पीसफुली वर्क कर पाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और गोल. इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक अलायंस में एग्रीमेंट टेक प्लेस बिटवीन द टू कंपनीज और द टू पार्टीज. So when these two companies merge together, तो ये एक वन एंटिटी बनाते हैं. why they want to merge together in order to form one company, so as to expand the business, so as to capture the market. क्या है, जब दोनों कंपनीज, if this company is working for what we say, we can take the example of Starbucks or PepsiCo. इन दोनों कंपनीज ने एक दूसरे को ज्वाइन किया, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया, लीगल एग्रीमेंट किया और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दोनों कंपनीज ने एक एंटिटी बनाई और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया रेडी टू ड्रिंक कॉफी प्रोडक्ट. ओके, जब रेडी टू ड्रिंक कॉफी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया तो इन दोनों कंपनी ने मिलकर मार्केट को कैप्चर कर लिया. सो इन दिस वे स्ट्रैटेजिक अलायंस इज हेल्पफुल. अब क्या है, स्ट्रैटेजिक अलायंस टेक्स प्लेस इन टू वेज. एक तो लॉन्ग टर्म लीगल रिलेशनशिप होती है, लीगल पार्टनरशिप टेक्स प्लेस, एक शॉर्ट टर्म लीगल पार्टनरशिप टेक्स प्लेस. बट strategic alliance focus करता है mainly on long term legal partnership. Okay, but if we talk about the example of joint venture, तो Sony is combined with Ericsson in order to form joint venture called Sony Ericsson to produce the mobile phones. तो दोनों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प की. जो वो पर्सन, जो कंपनी जिस चीज में परफेक्ट थी उसने वो चीज प्रोड्यूस करी अब रिलेटेड टू मोबाइल, और ये कंपनी जिस चीज में अच्छी थी इसने ये चीज प्रोड्यूस करी रिलेटेड टू मोबाइल और दोनों ने एक मोबाइल फोन बनाया. ओके, नाउ जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस. There are two methods to work with another company to share resources, risk and advantages while pursuing a common objective: joint venture and a strategic alliance. In joint venture, two or more businesses work together to create a new entity that they join, own and control. That is termed as joint venture. Forming a long-term relationship without stock ownership or legal duties is known as a strategic alliance. If I talk about the definition, वो examples तो मैंने आपको बता ही दिया है. Now, another way to enter into international business. Foreign direct investment, multinational corporation. See, foreign direct investment itself is expressing कि foreign company entering into India, purchasing the shares of the Indian company or the debentures of the Indian company, investing in the Indian company in order to form a corporation or a company so that they can enter into the Indian market. तो क्या कहते हैं उसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि बाहर की कंपनी अंदर आई इंडिया में, उसने इंडियन कंपनी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को परचेस किया, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ कंपनी. दैट इज टर्म्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. या फिर हम कह सकते हैं फॉरेन कंट्री इंडिया में आई और अपना बिजनेस या अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की. दैट इज टर्म्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Multinational corporation is what? Multinational corporation is when a company is establishing business or opening a business in different countries.
दैट इज टर्म्ड एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, या फिर कह सकते हैं कंपनी इज परफॉर्मिंग द बिजनेस इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो क्या होता है, द हेडक्वार्टर ऑफ दैट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज प्रेजेंट इन वन सिटी or the one country, and the branches are in many of the countries, so that is termed as multinational company। headquarter तो एक ही country में है उसका, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का, बट उसकी जो ब्रांचेस खुली हुई हैं कंपनी की, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में खुली हुई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हैं। ओके, सो दैट इज टर्म्ड एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बेनिफिट करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, businesses can benefit from foreign direct investment by gaining access to the new market, resources, technology, networks and skills। see, जब फॉरेन कंट्रीज एंटर होती हैं हमारे इंडिया में इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट, इन ऑर्डर टू ओपन अ न्यू बिजनेस, तो these companies are very advanced, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, अच्छे खासे इनके नेटवर्क्स होते हैं, अच्छी खासी स्किल्स हैं इनके पास, so that we will be also able to learn from them। और इनके पास मार्केट एक्सेस भी होता है, क्योंकि इन्होंने मार्केट कैप्चर भी किया होता है, बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। रिसोर्सेज लेकर आती हैं, रिसोर्सेज में भी हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं दे आर ऑल्सो गुड इनफ, बट इनके पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर मोर 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 व्हाट वी से, हमारे से बहुत 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 ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर वेरी इनोवेटिव। सो इन दिस वे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। See, if I talk about MNC, तो MNC is helpful in economies of scale, scope and learning are further advantage of MNCs। जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो क्या है, हमने काफी सारा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, हम इंडिया में भी वर्क कर रहे हैं, हम फॉरेन कंट्रीज में भी वर्क कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज राइजिंग और हमारा स्कोप भी ज्यादा है, क्योंकि जब हम इतनी देशों में वर्क कर पा रहे हैं तो हमारा स्कोप इंक्रीज हो गया, हम अच्छी खासी लर्निंग ले पा रहे हैं, हम इस देश के बारे में भी जानते हैं, हम उस कंट्री के बारे में भी जानते हैं, हम इस कंट्री की बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में भी जानते हैं, तो हमें हर कंट्री की नॉलेज मिल रही है when we are doing business in different different countries। So MNC is helpful in this way। If I talk about the examples, Walmart invested in various retail chains in Canada, Mexico, Brazil, China, India and other countries। Walmart क्या है, एक ग्रोसरी स्टोर कह सकते हो, हाउस होल्ड स्टोर कह सकते हो, या फिर उस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ रिटेल स्टोर जो कनाडा में भी प्रोवाइडेड है, मैक्सिको में भी, ब्राजील में भी, इंडिया में। सो Walmart is working in different different countries, और ये जो Walmart स्टोर है ये आधे से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा है बाय establishing itself in different different countries। If I talk about Samsung, Samsung invested in various factories। अब Samsung ने क्या किया है, अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो Samsung ने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए वेरियस फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, रिसर्च सेंटर में, ऑफिसेज में, सब्सिडरीज में अराउंड द वर्ल्ड। ओके, नेस्ले ने क्या किया, नेस्ले इन्वेस्टेड इन वेरियस फूड्स एंड बेवरेज ब्रांड्स। नेस्ले ने नेस्ले कॉफी बनाई है, किट कैट, मैगी एक्सेट्रा, इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ये प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं, तो नेस्ले ने अपने आप को ऐसे एक्सपैंड किया। ओके, सो दीज आर द वेज टू एंटर इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। नाउ e-commerce and digital platform। See, e-commerce is what? When you are purchasing goods or services online via website or mobile application. Mobile applications are like Nykaa, Amazon, Flipkart,
or we can say any kind of the application like Uber और फूड की एप्लीकेशन हो सकती है लाइक स्विगी. तो ये सारी एप्लीकेशंस के थ्रू व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज देन दैट इज टर्म्ड एज ई कॉमर्स. जो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी दैट वी यूज टू गो टू द मार्केट एंड देन चेक द आइटम्स एंड देन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप, अब वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स. नाउ दैट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज day by day converting into e-commerce or e-marketing, electronic marketing या digital marketing. Digital what we say डिजिटल नेटवर्क्स के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के थ्रू वी आर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. घर बैठे बैठे आराम से हम लैपटॉप खोलते हैं, अपना ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं. हम जब वो परचेज कर रहे हैं आइटम, तो हमें घर बैठे बैठे वो आइटम आराम से मिल रहा है और हमारी जो हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उस कंपनी को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है घर बैठे बैठे सेल हो रहा है, ऑनलाइन सेल हो रहा है. So in this way e-commerce works. तो जब भी हम ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज करने हैं, इंटरनेट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, if we are purchasing any goods or any kind of the services we are taking, then that is termed as e-commerce. See, if I talk about digital platform, that is what digital platform जो है is the online network. ये एक ऑनलाइन नेटवर्क है जो फैसिलिटेट कराता है, जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है बाय एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. तो जब भी आप कुछ सर्विसेज लेना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू बाय एनी, इफ यू वांट टू ईट समथिंग, तो आप क्या करते हो, फूड एप्लीकेशन के थ्रू, जो एप्लीकेशन लाइक स्विगी होती है या किसी भी तरीके की एप्लीकेशन है, उबर ईट ऐप होती है, उसके थ्रू आप फूड, कोई भी फूड खाना चाहते हो या कुछ भी तरीके का, लाइक यू वांट टू ईट फ्राइड राइस, जो नूडल्स जो भी है, आप उसको ऑनलाइन मंगा लेते हो. इफ वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ द एप्लीकेशन लाइक उबर का ही एक कैब एप्लीकेशन होती है जो राइडर प्रोवाइड करती है, जो ड्राइवर प्रोवाइड करती है, तो आपके पास कार आ जाती है और आप कार में बैठ के wherever you want to go तो आप चले जाते हो. That is also a digital platform. So if I talk about e-commerce and digital platform, these are very much helpful in order to reach the global client. बिजनेस के लिए कैसे हेल्पफुल है कि ये ग्लोबल क्लाइंट प्रोवाइड करा देते हैं. जब ये एप्लीकेशंस नहीं थी, when everyone was working directly, शॉपिंग भी डायरेक्टली कर रहा था, शॉप पर जाते थे, शॉपिंग करते थे, अब बाहर निकले, रिक्शा पकड़ा तब जाते थे. जब पहले ऐसा हुआ करता था तो जो कस्टमर्स थे दे वर मींस द बिजनेस वाज नॉट रीचिंग टू द ग्लोबल कस्टमर्स. नाउ बिजनेस इज रीचिंग टू द ग्लोबल कस्टमर्स मींस व्हाट, अब डिफरेंट कंट्रीज में ये एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं. डिफरेंट कंट्री पीपल आर आल्सो परचेजिंग द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम दीज एप्लीकेशंस मींस व्हाट, ग्लोबल रीच हो गए, ग्लोबल क्लाइंट्स मिल गए बिजनेस को. तो इट इज वेरी मच हेल्पफुल. अब क्या हुआ, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई. कैसे, अब जब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको बाहर निकलकर, रिक्शा लेकर, कार लेकर, पेट्रोल खर्च कर कर उस मार्केट प्लेस पर नहीं जाना पड़ रहा है और आपको वहां परचेस करने के लिए अपना एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा है. नाउ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन और आपको फ्री डिलीवरी मिल जाती है. आपको प्रोडक्ट की जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं किसी एप्स में है भी नहीं वो, और किसी एप्स में है भी तो इतने नहीं होते हैं. सो यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल बाय परचेजिंग योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज बाय सिटिंग एट योर होम, और आराम से आप उन सब चीजों को परचेज कर पा रहे हो. बूस्ट प्रोडक्टिविटी, हाउ इट बूस्ट प्रोडक्टिविटी. सी, प्रोडक्टिविटी कैसे बूस्ट होती है, व्हेन यू आर परचेजिंग एनी काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, किसी कंपनी का आपने प्रोडक्ट परचेज किया एंड नाउ यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो जिस कंपनी का आपने प्रोडक्ट परचेज किया दैट कंपनी इज गेटिंग द प्रॉफिट. तो मोर एंड मोर यू आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग, द मोर एंड मोर कंपनी इज गेटिंग द प्रॉफिट, ड्यू टू विच कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. क्योंकि उसकी डिमांड इतनी हाई है तो कंपनी को
बूस्ट मिल रहा है, कंपनी इज गेटिंग मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो इन दिस वे बूस्ट प्रोडक्टिविटी, improves customer satisfaction when you are providing lots and lots of variety on any kind of the application, whether that is Nykaa, whether that is Flipkart, Ajio, any kind of the application में वो जो product मिल रहा है उसकी बहुत सारी varieties मिल रही हैं, तो customer is very satisfied, क्योंकि customer को जब 10-12 items दिखाई दे रहे हैं तो customer is purchasing the best item from all these 10-12 items. So improves customer satisfaction in this way. So e-commerce or digital platform are helpful in this way. Now, if I talk about the example, Amazon जो है, Amazon sells various products online through its website and application, as well as provide cloud computing services through Amazon Web Services. तो Amazon ने अपनी एक website बनाई हुई है, as you people also know. आप Amazon के through product और goods और services की facilities का आनंद उठाते हो. आप कोई भी product खरीदना चाहते हो, आप Amazon ऐप पर जाते हो, आप वहां से product खरीद लेते हो. और Amazon is also providing cloud computing services. This is a kind of application जो businesses use करते हैं, बड़े-बड़े businesses application का use करते हैं, तो it is helpful in that way also. Amazon is helpful in that way also. तो Uber connects a driver and rider through its app, as well as provide food delivery services through Uber Eat. Uber Eat एक application है जो food product provide करती है. आप जो खाना चाहते हो आप application में डाल देते हो और फूड डिलीवरी करने डिलीवरी मैन आता है और आपको फूड देकर चला जाता है. उबर एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जिसमें कैब राइडर, कैब आती है, ड्राइवर आता है और आप जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो. ओके, नाउ this process of purchasing or selling goods or services online via website or mobile application is known as e-commerce. Digital platform refers to online networks that facilitates the exchange of products and services between buyers, sellers, and the providers. Businesses may reach a global client base, lower transaction cost, boost productivity, and improve customer satisfaction with the use of e-commerce and digital platform. Examples आपको मैंने बता ही दिए हैं. Now, another one. Social entrepreneurship and corporate social responsibility. See, social entrepreneurship is what? जब कोई भी entrepreneur एक enterprise set करता है, that is termed as entrepreneurship. अब that enterprise, जो enterprise set हुआ है, that is related to the social works, or we can say that जो solve कर रहा है society issues को, then that is social entrepreneurship. Simple. So क्या है? Social entrepreneurship is the process of starting or assisting companies that provide noble goods or services with the goal of resolving environmental or the social issues. जितने भी environment related या फिर social society related issues हैं, उनको solve करने में जो enterprise work कर रहा है, that is termed as social entrepreneurship. Corporate social responsibility is what? See, कोई भी environmental या social issue आ गया है into the business operations and the strategies, और आप उन सभी आपके जो business operations हैं, जो business strategies हैं, that are made according to the environment and the social that are made so as to solve the environmental as well as social issues, that is termed as corporate social responsibilities. जितनी भी environmental related issues आए हैं, जितने भी social society related issues आए हैं, और आपके जितने भी operations, business operations चल रहे हैं, business strategies चल रही हैं regarding those social concerns, regarding those environmental concerns, and in order to solve all these problems, that is termed as corporate social responsibilities. तो जब आप society के लिए work कर रहे हो, जब आप environment related work कर रहे हो, आप donation
डोनेशंस दे रहे हो, आप सोसाइटी की हेल्प कर पा रहे हो, इन्वायरमेंट की हेल्प कर पा रहे हो, देन दैट एंटरप्राइज, दैट बिजनेस जो इन सब चीजों को ऑपरेट कर रहा है, जो इन सब चीजों के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहा है, दैट इज टर्म्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ Toms sell shoes online and offline and donate a pair of shoes to a child in need for every pair sold. तो ये क्या है, इन्होंने डोनेट किया a pair of shoes. जब वो अपने pair of shoes बनाते हैं तो वो एक्स्ट्रा pair of shoes उन लोगों को देते हैं, उस child को देते हैं who is in need of that particular pair of shoes. Okay. Patagonia sells outdoor clothing and gear and donate 1% of its sales to environmental organization. तो क्या करती है ये, 1% डोनेट करती है टू एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि एनवायरमेंटल रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए पैसा भिजवाती है 1%, सो दैट क्या होता है कि एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज जितने हैं जिनको भी सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, और ये सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन बना पा रही है इस तरीके से. If I talk about social entrepreneurship or corporate social responsibility, why they are taking the what we say, why they are resolving the environmental as well as social issues, क्योंकि इस तरीके से they are improving their reputation. वो अपनी reputation improve कर पा रही हैं, अपनी goodwill maintain कर पा रही हैं public के सामने, और अपने clients बना पा रही हैं. Clients are getting impressed by these companies कि अच्छा they are donating 1% on environment, on society. This is very good. ये अच्छा काम कर रहे हैं, और they also maintain their, they are in this way they are able to maintain their staff, और इनको investors भी मिल जाते हैं क्योंकि investors get impressed because इनकी reputation, इनकी goodwill देखकर investors भी इन companies में invest करना चाहते हैं. So in this way social entrepreneurship or corporate social responsibility, they enter into the international business. Now, social entrepreneurship is the process of starting or assisting companies that provide novel goods or services with the goal of resolving environmental or the social issues. Integrating environmental or social concern into business operations and strategies is known as corporate social responsibility or CSR. CSR and social entrepreneurship may benefit companies by improving their reputation, generating goodwill among the public, and drawing its client, staff, and investors. If I talk about example, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डोनेशन दी गई 1% की, और यहाँ पर शूज दिए गए जो children, the people or any of the child who is in need of that pair of shoes, तो उनको ऐसे donation दी गई. Or 1% donation of clothing, gear, all these things are given by these companies so as to improve the reputation of their company. So in this way, I'm done with my topic. If you liked my video, do subscribe it. Thank you.